শুরু হয়ে যাবে 31 মে, মের এন্ড, লাস্ট উইক অফ এপ্রিল আর ফার্স্ট উইক অফ মে, এটা মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বলছে আমাদের কাছে ভয়াবহ ভয়াবহ। আমি বলি আপনাদেরকে জেনে রেখে দিন, আমরা একদম মাটিতে নেমে কাজ করছি। হাওড়া জেলা হাসপাতাল টোটাল বন্ধ, পুলিশ দিয়ে ব্যারিকেড করে একদম শ্মশান করে দেওয়া হয়েছে, একটা ভৌতিক বাড়ি হয়ে গেছে হাওড়া জেলা হাসপাতাল। খবর নিয়ে দেখবেন। তাহলে অতজন ডাক্তার, অতজন নার্স, অতজন আয়া, অত লোক সব চলে গেছে কোয়ারেন্টাইনে। কি প্রেসার দেখুন, তারা সব চলে এসছে সঞ্জীবন হসপিটাল অথবা ইএসআই হসপিটাল। আমাদের কোয়ারেন্টাইন দুটো, ওম দয়াল আর একটা হচ্ছে সিআইপিটি কলেজ, আমাদের দুটো কোয়ারেন্টাইন ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। যিনি পরিসংখ্যান দিচ্ছিলেন কিছুক্ষণ আগে, এমন আসবে আপনারা একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুন, যদি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন না করেন এমন আসবে, চিকিৎসা হবে না। যেমন আপনার হাসপাতাল চারটে, দুটো কোভিড, একটা হচ্ছে ইএসআই, একটা হচ্ছে সঞ্জীবন, আর দুটো কোয়ারেন্টাইন, একটা হচ্ছে ওম দয়াল, একটা হচ্ছে সিআইপিটি। হাসপাতালে সিট কটা আছে? সঞ্জীবনে আছে 320টা, ইএসআই হাসপাতালেও 300 কতটা আছে। এই হচ্ছে কন্ডিশন। যদি 15,000 লোক এফেক্ট হয়, আপনি একটু চিন্তা করুন। আপনার বাড়ির লোক নিয়ে যাচ্ছে, ওখানে মারামারি হচ্ছে, সঞ্জীবনে ঢুকতে পারছেন না। 15,000 লোক তো কে ঢুকবে? কোথায় ঢুকবে? ঢুকবেন কোথায়? চিকিৎসা হবে কোথায়? চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন না। এই জন্য বলছে যে কিছু মানে এমনও হবে ফুটপাতে পড়ে থাকতে হবে। আপনার চিকিৎসা নেই তো। হাওড়া জেলা বন্ধ হয়ে গেছে, দেখুন আরো পরের সপ্তাহে আরেকখানা হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যাবে। জানি না, হতেই পারে কার মধ্যে কোয়ারেন্টাইন, কার মধ্যে ধরা পড়ে যাবে। আমি সেই জন্য বলছি খুব সিরিয়াসলি ব্যাপারটাকে নিন। আমার এই বার্তা যেখানে যেখানে গেল সবাইকে বলুন, এটাকে ক্যাজুয়ালি নেওয়ার জায়গা নয়। দেখুন আপনারা যারা স্ট্যাটিস্টিক্স জানেন, যারা দেখেন টিভির দৌলতে, খবরের কাগজের দৌলতে, যে পরিসংখ্যান ছিল তার থেকে লাস্ট 72 ঘন্টায় কি রেশিওতে বেড়ে গেছে, কালকে দেখবেন আরো বেড়ে গেছে। আপনারা অ্যালার্ট থাকুন, আপনারা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করছেন করুন, আর হাতটা সব সময় ধরবেন। ডাক্তাররা আমাকে সব সময় বলছে, বড়বাবু আপনাদেরকে সব জায়গায় যেতে হয়, আমরা এই টিম নিয়ে সব সময় ঘুরছি। হাত হয় কথায় নয় কথায় হাত ধুন, হয় কথায় নয় কথায় হাত ধুন, কারণ কখন চোখে দেবেন জানেন না আপনি। হয় কথায় নয় কথায় হাত ধুন, আর মাঝে মধ্যে জল খান, কমলা লেবু খাবেন, ভিটামিন সি খাবেন, কমলা লেবু খাবেন। এগুলো আমাদেরকে ট্রেনিং এ বলা হয়েছে। আপনারা প্রচুর পরিমাণে একটা করে দুটো করে কমলা লেবু খাবেন। এটা কি হয়? ইমিউনিটি বাড়ায়। এই ক্ষেত্রে প্রচন্ড ভিটামিন সি এর প্রচন্ড দরকার, খাবেন আপনারা। এটা আমি বলার সুযোগ পেলাম বলে বলে দিলাম। আপনারা ভালো থাকুন। আমি नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार रिसर्च कर रहे हैं। इसके लक्षणों से लेकर इसके इलाज की को लेकर हो रहे रिसर्च में हर दिन कोई ना कोई नई जानकारी सामने आ रही है। हाल ही में हुई एक रिसर्च स्टडी में इस बात का पता चला है कि लक्षण दिखना बंद होने के हफ्ते भर बाद भी मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। यह बहुत वाइटल विषय है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर में अलग अलग देशों में इस वायरस के विभिन्न पहलुओं को लेकर शोध हो रहे हैं। वैज्ञानिक इसकी दवा और वैक्सीन को बनाने में लगे हैं, तो दूसरी ओर शोधकर्ता इसके लक्षणों को लेकर भी रिसर्च कर रहे हैं। हाल में हुए एक रिसर्च में बताया गया है कि इलाज के बाद कोरोना के लक्षण गायब हो जाने के बाद भी मरीज के शरीर में कोरोना वायरस की उपस्थिति हो सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसलिए इस महामारी को रोकना चुनौती भरा है। आइए जानते हैं इस रिसर्च को विस्तार पूर्वक। अमेरिकन शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि जिन मरीजों को रिसर्च सैंपल के तौर पर लिया गया, उनमें से आधे मरीजों में बीमारी के लक्षण गायब होने के बाद भी वायरस पाया गया। शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के हल्के संक्रमण वाले 16 मरीजों का आकलन किया और इस नतीजे पर पहुंचे। शोधकर्ताओं के मुताबिक रिसर्च के दौरान
चीन में कोरोना से संक्रमित 16 मरीजों पर नज़र रखी जा रही थी। इनमें से आधे मरीजों में लक्षण खत्म होने के 8 दिन तक वायरस के ट्रेस थे। इस स्टडी में चीन के जिन मरीजों को सैंपल के तौर पर रखते हुए स्टडी की गई, वे मरीज 28 जनवरी से 9 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती थे। उनके मुताबिक कोरोना से संक्रमित 16 में से 8 मरीजों में लक्षण खत्म होने के कारण भी उनके शरीर में वायरस मौजूद रहे। ऐसी स्थिति में वायरस का संक्रमण और गंभीर हो सकता है। आमतौर पर लक्षण दिखने में 3 से 5 दिन लगते हैं, लेकिन एक मरीज में 8वें दिन लक्षण दिखे। रिसर्च के दौरान मरीजों के गले में से सैंपल लेकर नियमित तौर पर जांच की गई। कंट्रोल डिजीज एंड प्रिवेंशन कंट्रोल अमेरिका के मुताबिक जिन मरीजों का बुखार बिना दवाओं के ठीक हुआ हो, उनमें लक्षण दिखने पर कम से कम 3 दिन के लिए आइसोलेट करना चाहिए। इस स्टडी में भी शोधकर्ताओं की सलाह है कि कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन पीरियड 14 दिन है, जिसे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि ऐसे मरीजों से दूसरे लोगों को संक्रमण ना फैल सके। एक शोधकर्ता का सुझाव है कि लोग खुद को लंबे समय तक आइसोलेट करें। उनकी सलाह है कि यदि किसी को कोरोना के लक्षण महसूस हो तो उन्हें खुद को सेल्फ क्वारंटीन करना चाहिए। 2 हफ्तों तक क्वारंटीन में रहने से भी लक्षण ना समझ आए तो भी क्वारंटीन को जारी रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद भी उनसे संक्रमण का खतरा हो सकता है। आइए अब हम लोग चर्चा करें, कोरोना से ठीक हुए लोगों को दोबारा क्यों हो जाता है संक्रमण। माना जाता है कि एक बार कोरोना वायरस या फिर इस जैसे संक्रमण के बाद उसके खिलाफ शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है और वही वायरस दूसरी बार उस व्यक्ति को संक्रमित नहीं करता। लेकिन कोरोना वायरस के कारण होने वाले कोविड-19 बीमारी से ठीक हुए मरीजों में ताज़ा टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। तो क्या ये वायरस दूसरों से अलग है? 70 साल के एक व्यक्ति के मामले में डॉक्टरों को हैरान परेशान कर दिया है। इस व्यक्ति में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया था, जिसके बाद फरवरी में इन्हें टोक्यो के एक अस्पताल में दूसरों से अलग थलग रखा गया था। उनके अनुसार ये व्यक्ति कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हो गए थे और टेस्ट नतीजे निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई थी। वो सामान्य ज़िंदगी में लौट आए थे और आम दिनों की तरह सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें बुखार आ गया। डॉक्टर उस समय चौंक गए जब कोरोना वायरस के लिए उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। फिर से अस्पताल पहुंचने वाला ये जापान का इकलौता मामला नहीं है। यहाँ ऐसे कई और मामले सामने आए हैं जब कोरोना से ठीक हुए लोगों में फिर से इसी वायरस का संक्रमण देखने को मिला है। लेकिन क्यों, क्या वजह है ये दूसरी बार व्यक्ति को संक्रमित करता है? लौटता क्यों है कोरोना वायरस? CAIC ने बताया कि कम से कम 14% मामले ऐसे हैं जिनमें पहले इस वायरस से ठीक हुए लोगों में कोरोना वायरस टेस्ट दोबारा पॉजिटिव पाया गया है। वो कहते हैं कि उनमें फिर से वायरस संक्रमण नहीं हुआ है, बल्कि वही वायरस फिर से उनके शरीर में खुद को बढ़ा रहा है। इसे मेडिकल विज्ञान में बाउंसिंग बैक भी कहते हैं। शोधकर्ता का मानना है कि हो सकता है कि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति कोरोना वायरस से हमेशा के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाती, और जैसे ही व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति जरा कमज़ोर पड़ती है, पहले से शरीर में मौजूद वायरस शरीर पर हमला कर देता है। तो क्या वायरस शरीर के भीतर रहता है? कुछ वायरस इंसानी शरीर के भीतर 3 महीने या फिर इससे अधिक वक्त तक रह सकते हैं। शोधकर्ता कहते हैं, पहले अगर किसी व्यक्ति में वायरस मिला है और उसके बाद किया गया टेस्ट निगेटिव आया, तो माना जाता है कि उस व्यक्ति के शरीर ने उस वायरस से लड़ना सीख लिया है और इस कारण वो वायरस फिर से उस व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता।
लेकिन कई बार ऐसे शरीर के ऐसे टिश्यू में कुछ वायरस छिपे रह जाते हैं जहां शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति का असर कम पहुंचता है। वायरस ने बढ़ाई है वैज्ञानिकों की चिंता। कोविड-19 के बारे में जिस एक बात को लेकर वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ गई है, वो है व्यक्ति के ठीक होने के बाद दोबारा संक्रमित होने के बीच का कम वक्त। हम ये जानते हैं कि अलग अलग बीमारियों के खिलाफ शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति अलग अलग तरह से काम करती है। खसरे के मामले में कम उम्र में दिया गया टीका पूरी जिंदगी के लिए व्यक्ति को उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार कर देता है, लेकिन कई स्वास्थ्य अधिकारी के मानते हैं कि दूसरी बार एक खास उम्र में खसरे के टीके का दूसरा डोज देना बेहतर होगा। कहीं ऐसे वायरस भी हैं जिनके खिलाफ टीके अधिक कारगर साबित नहीं होते। ऐसे में नियमित तौर पर टीके का डोज बढ़ाना, बूस्टर डोज देना बेहतर समझा जाता है। साथ ही हर साल इन्फ्लुएंजा और कॉमन फ्लू के टीके भी दिए जाने जरूरी है, क्योंकि वायरस बार बार खुद को बदल लेता है। तो जारी है वायरसों को समझने की कोशिश। कोविड-19 एक नया वायरस है और वैज्ञानिक फिलहाल इनके व्यवहार को समझने की कोशिश में लगे हैं। वो इसके समझने में व्यस्त हैं कि कोरोना वायरस इतनी जल्दी कैसे फिर से लौट आता है। ऐसा नहीं है कि आपका शरीर इससे हमेशा के लिए लड़ना सीख जाता है। अगर साल 2 साल के बीच फिर से महामारी जैसी स्थिति आई तो ये वायरस आपको दोबारा संक्रमित कर सकता है, लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। जो वायरस से लड़कर उसे हरा चुका हो, उसमें दोबारा उसी वायरस का संक्रमण हो जाए। जहाँ तक हम जानते हैं, फ्लू वायरस की तरह ये वायरस बार बार अपना रूप नहीं बदलता। फिलहाल आने वाले मामले आम नहीं हैं। वैज्ञानिक आपस में सहमत हैं कि जिनमें ये मामले दोबारा देखे जा रहे हैं, शायद उनमें संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होगा। वो कहते हैं, जिन लोगों के कोविड-19 वायरस का टेस्ट एक बार फिर पॉजिटिव आया है, हो सकता है उनके शरीर से वायरस पूरी तरह खत्म ना हुआ हो और रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने से वायरस फिर से सामने आ गया हो। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि कोरोना वायरस को समझने के लिए और शोध की ज़रूरत है। पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (PHO) ने बताया है, कोविड-19 एक नया वायरस है जिसके बारे में हमें कम ही पता है। इसके बारे में रोज़ नई नई जानकारी जुटाई जा रही है। इस कारण इसके दोबारा संक्रमण के कारणों के बारे में कहना हमारे लिए अभी मुमकिन होगा। वैज्ञानिक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस महामारी से बचने की सरकार की कोशिशों में वे मदद कर सकें। आज का चर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। धन्यवाद। আমি ডক্টর প্রদীপ মিত্র, একজন প্রবীণ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠন ও মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন সভাপতি কথা বলছি। দেশ থেকে লকডাউন উঠে গেল মানেই করোনা চলে গেল, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। বাস্তবে আমাদের এখনও অনেক বছর, বেশ কয়েক বছর থেকে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত হয়তো এই করোনাকে নিয়েই বাঁচতে হবে। দ্বিতীয়ত, লকডাউন এর উদ্দেশ্য হলো করোনার প্রভাবকে বিলম্বিত করা এবং সীমিত করা, যাতে আমরা করোনার যুদ্ধে নিজেদের বেশ কিছুটা প্রস্তুতি সেরে নিতে পারি। এই মুহূর্তে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রতিদিন খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং আপনারা প্রতিদিন নিউজ পেপার বা টেলিভিশনে যা দেখছেন সেটা হিমশৈলীর চূড়া মাত্র, অর্থাৎ টিপ অফ দ্য আইসবার্গ। তা অনেকটাই বাস্তবের সঙ্গে তার মিল নেই। করোনা ভাইরাস এটা এমন একটা ভাইরাস যেটা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে অথবা একই দেশে বিভিন্ন সময়ে এর ক্রমাগত চেহারা এবং ক্ষতিকারক ক্ষমতার পরিবর্তন করে চলেছে। তাই এর কোনো স্পেসিফিক বা নির্দিষ্ট ওষুধ বা ভ্যাকসিন তৈরি হওয়া
আবিষ্কৃত হয়ে হয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছতে এখনো অনেক দেরি। একমাত্র আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়েই এর মোকাবিলা করা সম্ভব এই মুহূর্তে, যাকে আমরা বলি হার্ড ইমিউনিটি। এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত গর্ভবতী মায়ের থেকে তার শিশু আক্রান্ত হয়েছে এমন কোনো ঘটনা বা এমন কোনো আমরা প্রমাণ পাইনি, আমাদের হাতে নেই। এবং তাই নবজাতককে মায়ের দুধ অবশ্যই বিশেষ প্রস্তুতি নিয়ে খাওয়ানো করা যেতে পারে, তাতে কোনো নিষেধ নেই। একটা কথা জানা দরকার, কোনো করোনা আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে বা তার থেকে অন্তত 3 ফুট দূরত্বের মধ্যে থেকে অন্তত 15 মিনিট যদি তার সাহচর্যে কাটানো যায়, তবেই তার থেকে অপর সেই ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত হতে পারে। তাই আমার সমাজের কাছে অনুরোধ যে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকর্মী যারা সামনে থেকে করোনা যুদ্ধ করছেন তাদের অস্পৃশ্য ভেবে তাদের সঙ্গে অমানবিক বা অসামাজিক আচরণ করবেন না। তাহলে এমন দিন আসবে হয়তো যেদিন আপনার নিজের চিকিৎসার জন্যই কোনো চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী আপনি খুঁজে পাবেন না। সবশেষে যে কথা সেটা হচ্ছে করোনা মৃত্যু ও শবদেহের পরিণতি অত্যন্ত মর্মান্তিক। তাই সমাজকে পরিবর্তিত চিন্তা এনে এই মৃত্যুকে মর্যাদা সহকারে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যকর্মীদের ক্ষেত্রে গান স্যালিউট দিয়ে বিদায় জানাতে হবে। নমস্কার। আজকের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি এক অজানা পরিণতির দিকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিছু কথা আপনাদের সামনে বলতে এলাম। তবে হ্যাঁ, এই বিষয়ে আপনারা অনেকের মুখে অনেক কথা শুনেছেন বা দেখেওছেন। সেই সব মাথায় রেখেই আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াস। অবশ্যই আপনারা এটা শুনবেন ও কাজেও লাগাবেন, তবেই আমরা সফল হব। বন্ধুরা, আমরা এখন এক সংকটময় পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে। এই অবস্থা থেকে আমরাই আমাদের বাঁচাতে পারি। কিভাবে? উপায় একটাই, গৃহবন্দী থেকে। চলুন গৃহবন্দী থেকে আমরা এই করোনার বিরুদ্ধে লড়াইটা শুরু করি। আমরা এখন সবাই জানি করোনার জন্য পুরো বিশ্ব কাঁপছে। তাই আসুন না আমরা সবাই মিলে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধটা শুরু করি। এই যুদ্ধ কিন্তু বন্দুক, গুলি, কামান নয়। এই যুদ্ধ মানে শুধু বাড়িতে বসে থাকুন, ব্যাস, তাহলেই করোনা জব্দ। সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার বেশ কিছু জেলাকে হটস্পট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আবার এই হটস্পট জেলাগুলোর মধ্যে কিছু কিছু অঞ্চলকে রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। যারা এই রেড জোন অঞ্চলে বসবাস করছেন তাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা এই সরকারি বিধি নিয়মগুলো মেনে চলুন এবং যথাযথভাবে পালন করুন। কারোর যদি সর্দি, কাশি বা জ্বর এই উপসর্গগুলো দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। আপনি নিজে বাঁচুন, আপনার পরিবারকে বাঁচান, আমাদের দেশকে বাঁচান। আপনি সুস্থ থাকলে আমাদের পরিবার সুস্থ থাকবে, পরিবার সুস্থ থাকলে এলাকা সুস্থ থাকবে, আর এলাকা যদি সুস্থ থাকে তাহলে গোটা দেশ সুস্থ হবে। আমাদের এই কর্মব্যস্ত জীবনে আপনার কি কখনো মনে হয়নি যে একটু পরিবারকে সঙ্গ দিই একটা গোটা দিন বা একটা গোটা সপ্তাহ? এটাই তার সুবর্ণ সুযোগ। লকডাউন মেনে চলুন, বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, পরিবারকে সঙ্গ দিন, ভালো থাকুন। এটা কি ভেবে দেখেছেন শুধুমাত্র আমরা ভালো থাকবো বলে আমাদের ডাক্তার, নার্স, পুলিশ ভাইরা কি অক্লান্ত পরিশ্রম করছে? আসুন না আমরা তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই, শুধুমাত্র ঘরে থেকে তাদের সহযোগিতা করি। বাড়িতে থাকুন, জীবন বাঁচান। একসময় ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছিলাম আমরা, আর আজ ঘরে থেকে রাস্তায় না বেরিয়ে এই মহামারী করোনার হাত থেকে নিজের পরিবার এবং দেশকে স্বাধীন করার সুযোগ এসছে। ঘরে থেকেই এই আন্দোলনে আপনিও সামিল হন। আমরা বাড়িতে থাকবো এবং কয়েকটি কথা মাথায় রাখবো। মাস্ক পরবো,
সাবান বা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোবো, চোখ কান বা মুখে অযথা হাত দেব না, প্রয়োজনীয় কোনো কারণে বাইরে বেরোলে ভিড় এড়িয়ে চলবো এবং প্রাথমিক দূরত্ব বজায় রাখবো। আসুন আমরা করোনার বিরুদ্ধে বাড়িতে বসে যুদ্ধটা শুরু করি। শুধু একটাই কথা, ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন, যেমন আমি আছি আপনারাও থাকুন। दोस्तों, आप सब लोगों को हेमंत पांडे का नमस्कार। देश जिस हालात में चल रहा है वो बहुत दुखदाई है, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स के ऊपर पथराव किया जा रहा है, उन डॉक्टर्स के ऊपर जो भगवान का रूप है उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है। ये बहुत दुखदाई है। तो मैं मोदी जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ, मोदी जी, अरब कंट्रीज़ में कई मुस्लिम देशों में ये प्रावधान है, कोरोना के इस दौरान थूकने वाले पर सजाए मौत का प्रावधान है, उस पर ज़्यादा कुछ लाग लपड़ है ही नहीं। तो वो नियम मुझे लगता है वो तुरंत यहाँ पे लागू किया जाए, और आप चाहें तो आज ही के आज इस नियम को बना सकते हैं। पार्लियामेंट का सेशन बुला करके लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसको आप बिठा करके और ये नियम लागू कर सकते हैं। आज ही के आज ये नियम लागू हो सकता है। और मैं उन तमाम लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ जो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट नहीं चाहिए दोस्तों, इस वक्त कोई कमेंट मत लिखिए, इसको शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि आज ही के दिन पूरा मोदी जी इस पर सेशन लागू करें, बैठक करें, और आज ही के दिन ये नियम लागू हो जाए कि कोरोना वॉरियर्स के साथ अभद्रता करने वाले पर सजाए मौत का नियम बन जाए। मुस्लिम देशों में बन चुका है ये, मुस्लिम देशों में ये प्रावधान है, तो हमारे देश में भी बन सकता है। मोदी जी, आपने बहुत तरह के निर्णय लिए, हमारा आपसे विशेष आग्रह है कि अब ये निर्णय एक बार ले लीजिए और आप अपने देश का जो प्रधान सेवक है उसके पद को और उसके कद को दिखा दीजिए। आपके साथ पूरा देश है, आप चिंता मत करिए। हम सब लोग जो लॉकडाउन में बैठे हुए नहीं जा रहे हैं, इस वजह से और रोग फैल रहा है, अरबों रुपया देश का हो रहा है। इन पे केस चलेगा, उस पर वकील लगेंगे, डॉक्टर जज लगेंगे, अदालत का समय लगेगा, उस पर अलग से अरबों खरबों रुपये बर्बाद होगा। सिर्फ सजाए मौत का प्रावधान अगर आप कर देंगे तो इससे हमारा आगे को जो बड़ा नुकसान होने वाला है वो भी बच जाएगा। तो दोस्तों, इसको इतना शेयर कीजिए कि ये आज ही के दिन मोदी जी को भी लगे कि हाँ, पूरा देश साथ में है, तो वो आज ही के दिन ये नियम बन सकता है और ये कानून बन सकता है, और आज से ये लागू भी हो सकता है, और इसमें सब लोग आपके साथ हैं। मोदी जी नमस्ते। मेरा नाम ओम प्रकाश लड्डा, मैं एक फिल्म अभिनेता हूँ। आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार और एक निवेदन है। कोरोना महामारी से बचने के लिए आप लोग घर में रहें, सचेत रहें, स्वस्थ रहें, अपने बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। श्याम कपूर के द्वारा चलाए गए इस करुणा अभियान के आप सभी सहयोग भागी बने, और जब भी आप कभी बाहर जाना भी पड़े आपको, तो मास्क को लगाना न भूलें। धन्यवाद। PSA से कोई गरीब हो सकता है, लेकिन दिमाग से बित्ता गरीब नहीं हो सकता कि उधर प्रधानमंत्री बोल लिया और यहाँ चलेगा रेलवे स्टेशन। किसने कही थी तुमको, है बतलाओ? अरे कुछ हो जाता तो समझा करो यार, इसके चक्कर में मत पड़ो, अफवाह के चक्कर में मत पड़ो भाईजान, मत पड़ो। हाँ बताओ, बित्ते सारे लोगों को नहीं जाना चाहिए था ना। मैं इसलिए कह रही हूँ, प्रधानमंत्री बोल लिया, राज्य की सरकारों का मुख्यमंत्री जो बोल लिया, बिस्कू मानो। अरे भाई, पॉलिटिक्स तो बाद में भी कर लेंगे, मजहब धर्म की लड़ाई तो बाद में भी कर लेंगे, जब हम जिंदा रहेंगे। अरे जिंदा ही नहीं रहेंगे तब काय का धर्म, काय की पॉलिटिक्स, काय की राजनीति? बतलाओ, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो भैया इसलिए मैं कह रही हूँ, चुपचाप घर में पड़े रहो बस। और ये चैनल चल गया ना, जो गुड आइडिया विद हेमंत पांडे का, बिस्कू भाईजान बहुत लोगों तक पहुंचाना है। मैंने सोच लिया, अब आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज भाईजान, बिस्कू ऐसा सब्सक्राइब करो, ऐसा लाइक करो, जो घंटी वाला बटन नहीं होता, अबे हाँ बेल आइकन बिस्कू बजा डाला तो भाईजान बस सब कर डाला। ये वो क्यों? अबे यहाँ से कुछ भी बोला जाएगा तुमको पता कैसे चलेगा? अच्छा बेल आइकन बजाओगे जब भी तो तुमको भी पता चलेगा आज क्या आने वाला है। अब तो रोज ही आने वाला, रोज क्या आने वाला, हमेशा ही आने वाला। और ये जुम्मन चाचा बोल लिया, ये कोरोना के बाद भी मैं आऊंगा,
अरे बहुत सारे लोग आने वाले, मैं अकेला नहीं, अभी तो बहुत सारे लोग आने। तो इसलिए भाईजान इस चैनल को ऐसा फैलाओ कि ये फैल जाए, वो कोरोना सिमट जाए। अबे हम चाहते भी तो यही है ना यार, देर किस बात की। अब मैं चल जाऊं, खुदा हाफिज। तो दोस्तों ये थे जुम्मन चाचा, उन्होंने भी आपको बताया और मैं भी आपको कह रहा हूं कि इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसका जो बेल आइकॉन है घंटी वो बजाइएगा, ताकि हर दिन का अपडेट आपको मिलता रहेगा और इस बात को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं, ताकि ये और लोगों तक कार्यक्रम देखने को मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। Hi, my name is Sam Nagar and I hope you all are good. I just want to say, please stay home, stay safe. Thanks to Sam Kapoor Films. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे और आपका पूरा परिवार भी कुशल मंगल होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना नाम की बीमारी से बुरी तरह ग्रसित है और इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं निकल पाया है। इसको फैलने से रोका जा सकता है एक ही तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग। तो प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमें जो भी दिशा निर्देश बता रहे हैं उनका हम सख्ती से पालन करें। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, सेना है, सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उनको पूरी इज्जत बख्शें, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई बदसलूकी ना करें। जय हिंद, जय भारत। मनमीत सिंह का आप सबको बहुत सारा प्यार और ढेर सारा केयर। हम सब ने इस कोरोना में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करना है और इस कोरोना को भगाना है। जैसे कि हम जब नीचे जाते हैं तो एक दूसरे की जब हम डिस्टेंस रखते हैं, सिर्फ अपने नहीं दूसरों की भी केयर करते हैं, ऐसे ही हमने सबके लिए करना है। जैसे कि सैम कपूर फिल्म्स भी अंडर प्रिविलेज के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, हम सब ने कुछ ना कुछ करना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है। प्लीज़ अपना ध्यान दीजिए, स्टे सेफ। थैंक यू।